तो डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा घोषित किया। जी Shahid, bane rahiye mere saath. Now in another major update, we now have another video from Goa where a massive fire engulfed the whole club into flames. This video is from the time when the fire entered the area where a live band was performing. The dancers and musicians all looked towards the ceiling and saw a plume of smoke entering the area, following which they were alarmed and stopped the performance. I have Shahid back with me. Shahid, ये जो नई डिटेल्स हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में जो है अब तक की अगर हम बात करें तो जो मौके पर मौजूद लोग हैं उन्होंने इसके बारे में ये भी बताया है कि कई लोग ऐसे थे जिनका फोन भी नहीं लग रहा था, और यहाँ जो है कई ऐसे लोग हैं जो किचन में काम कर रहे थे, वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, जो उनका खुद का स्टाफ था। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो उसमें मैनेजर समेत तो इसके मालिक और ये सभी लोग शामिल हैं। अभी क्या गोवा सरकार ने जो है कई ऐसी हेल्पलाइंस भी जारी की है जिसको लेकर जो है मृतकों या उनके परिवार तक सही जानकारी पहुंच सके। जी शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए। एंड शाहिद, अब ये एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौट के आऊँगी। Now, in more breaking news, Jharkhand CM Hemant Soren said the loss of lives in a fire accident at Birch by Romeo Lane nightclub in Goa's Arpora village was extremely heartbreaking. The Chief Minister also extended prayers for the swift recovery of those injured in the incident. On X, he wrote, May Marang Buru grant peace to the soul of the departed and give strength to the grieving families to endure this hour of sorrow. I have Shahid back with me. Shahid, ये जो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की स्टेटमेंट आई है, इसके बारे में आप और क्या बता सकते हैं हमें? Alright viewers, we'll try and reconnect with Shahid, but of course we're telling you about now Jharkhand CM Hemant Soren, who's of course spoken about the fire accident that has happened at Birch by Romeo Lane nightclub in Goa's Arpora village. And he said, viewers, Hemant Soren has said that this is extremely heartbreaking. The Chief Minister has also extended prayers for the swift recovery of those injured in the incident. And he's put out a post, viewers, on his X account. He's written that may Marang Buru grant peace to the soul of the departed and give strength to the grieving families to endure this hour of sorrow. So a fire, viewers, had engulfed Goa's nightclub are the details that we were sharing with you. And very dramatic visuals there, viewers, on your screens. But we have more breaking news now. Now the friend of one of the victims from the Goa club fire has now said that he once worked at the same club earlier and 8 to 9 of his friends still work there. Expressing his worry, he further revealed that he is unable to call his friends and that their phones seem to be switched off. Let's listen in. पहले यहाँ बर्च बाई रोमियो में जॉब करता था। हाँ, इसी रिजॉर्ट में। हाँ, तो वो नेपाल का था। एक सबीन है, एक सुभाष है और उत्तराखंड के भी हैं मेरे भाई लोग। हाँ। टोटल कितना लोग हैं? अभी पता नहीं है, इसमें पता नहीं चलता। फ्रेंड्स लोग कितना लोग हैं इधर? होंगे 8-9 लोग। 8-9 लोग? हाँ। कहाँ का है लोग? उत्तराखंड के हैं, नेपाल के हैं। अच्छा। हाँ, मैं पहले यहीं जॉब करता था। हाँ। फिर अभी वो 8 अभी पता नहीं चला है कौन। 8-9 लोगों का फोन तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा उनका। मैं अभी कर रहा, स्विच ऑफ बता रहा। हाँ, कल रात को ही किया, जबकि वो मेरे पता चला मेरे को कि ऐसा हुआ। मैंने कॉल किया उनको, कॉल बैक नहीं हो रही। Alright, Shahid Ansari, my colleagues back with me. Shahid, ये जो नई स्टेटमेंट आई है, ये विक्टिम के जो फ्रेंड है उन्होंने दी है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? और दरअसल जहाँ पे आग लगी है, पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो शव है वो 80 से ज्यादा % चले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में उनके मोबाइल फोन या दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी उसमें जलकर राख हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यही वजह है कि जो उनके रिश्तेदार हैं या वो सब जो है ट्राई कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं लग रहा है। हालांकि अब तक की बात करें तो डॉग स्क्वाड की मदद से जो है लोकेशन में वो सारी चीजें सर्च की जा रही हैं, ताकि जो जिसके पास है मोबाइल फोन, सिम कार्ड या इसके जरिए भी अगर किसी को कोई जानकारी मिल सकती है तो वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके बारे में भी पता लगाएं। कई सारे फोन ऐसे हैं जो स्विच ऑफ है, कई रिश्तेदार जो लगातार ट्राई कर रहे हैं, इनमें उत्तराखंड और नेपाल के काफी सारे लोग हैं। तो अब क्योंकि आग ज्यादा इतना तेज थी कि अंदर के हिस्से में जो घास फूस और लकड़ियां जो रही हैं
वो अंदर इंटीरियर में जो है पकड़ने के बाद वो पेट्रोल काम की है। यही वजह है कि आग बहुत तेज रही और संभव है कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन भी उसमें जल गया हो और लोग ट्राई कर रहे हो कि उनसे वो बातचीत कर सके, लेकिन बातचीत नहीं हो रही। इसी बात को देखते हुए गोवा सरकार ने कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए ताकि जो परिजन है, रिश्तेदार हैं, जो वो उस पर कॉन्टेक्ट करके तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड विद दैट वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।